हम सोच रहे थे कि 10:45 तक रुकें और देखें कि और रजिस्टर्ड जो पार्टिसिपेंट्स हैं आएंगे। आई थिंक वो आते रहेंगे। हमारा हर संडे का ये एक ट्रेंड रहा है कि शुरू करते हैं, उसके बाद लोग आते हैं अंदर। और सो हमारे स्पीकर भी आ चुके हैं। सो Aparna, can we start? So can you lead Neha ji to the front dais? Yeah. I'll welcome Neha ji. Please kindly take a seat here. Please take your seat. Neha ji, we are expecting few more, participants. I think close to about 45 odd have registered. So normally the trend is that people keep coming in, being a Sunday. So हम लोग शुरू करने के पहले एज ए कस्टमरी एक्सरसाइज नहीं बोल सकते हैं, एज अ रिचुअल हम अपने नेशनल एंथम को रिसाइट करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली राइज अप एंड हम आत्मीयता से हम अपना नेशनल एंथम गुनगुनाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू। मैं काफ़ी नए लोग हैं हमारे बीच में। So I recognize the presence of Mr. Ajay Gandhi, who's our past president, who's been instrumental in reviving Tea Corner and our PSABS. I really recognize his presence. I also recognize the presence of Mr. Mukesh Pandya. We are really honored, sir. He writes for Mumbai Samachar and a lot of newspapers. We are really honored to have you amongst us. Thank you so much. We welcome you, sir. He's been our Tea Corner speaker as well twice. Good. So very nice of you to have been with us. And I also recognize the presence of President of the Varishtha Nagarik and the Secretary and President of Varishtha Nagarik and Treasurer sir also. Welcome, thank you so much. तो एक क्विक इंट्रोडक्शन बोल देता हूँ। पास्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन बोरीवली एजुकेशन सोसाइटी। बोरीवली एजुकेशन सोसाइटी, यहाँ पर 3 स्कूल्स हैं बोरीवली के, जो बोरीवली के GH, MK और RC पटेल है। GH school is one of the oldest schools. बोला गया most of us are students of GH, and बोला गया है कि महात्मा गांधी जी भी was there who came into our school. And हमारा एक्टिविटीज़ मेनली ये टी कॉर्नर होता है लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। हम लोग स्पीकर्स फ्रॉम वेरीड नॉलेज स्पीयर्स हम लोग यहाँ पर उनको इनवाइट करते हैं, जिसलिए कि 3-4 जो एपिसोड्स हो गए हैं। राधा कृष्ण पिल्ले, हु हैज़ बीन
चाणक्य ऑफ इंडिया. सो वो चाणक्य सीरीज लिखते हैं, वो आ गए थे. मिकी मेहता, हु इज़ अ होलिस्टिक स्पिरिचुअल एंड होलिस्टिक गुरु, ही वाज देयर. उन्होंने 2 सेशंस किए हमारे साथ. हमारे लास्ट साइबर क्राइम सीरीज़ में हमने बुरुई पुलिस स्टेशन के साइबर क्राइम एक्सपर्ट प्लस वी हैड अनदर एक्सपर्ट हु केम एंड स्पोक अबाउट अस. उसके पहले हम लोग और एक माइंड पावर पे हमने एक टी कॉर्नर किया था, जिसमें कि देयर वर 3 यूनिक पर्सनालिटीज़. एक तो हु वाज क्या बोलते हैं कि ही इज़ अ हिप्नोटिस्ट, मिस्टर बी कुमार. एंड उनके साथ एक मैजिशियन आए थे, और उनके साथ एक हु इज़ अ पर्सन mentalist. He is a mentalist. So that particular tea corner, Neha ji, this space was less. पूरा भर गया था. Even of course राधा कृष्ण पिल्ले के लिए भी काफ़ी, everything was, participation was amazing. मिकी मेहता के लिए भी participation. Then last we had was Mr. Ashay, who's a celebrity physiotherapist, who's been attending to IPL teams, Ranji teams. He's treated Rohit Sharma, Ratan Tata, and so we had the honor of listening to him last tea corner. And this tea corner also, we have a diva amongst us. A diva who's definitely a dynamic woman, a businesswoman, a writer, poetess. She's a content writer. She is a content writer in the sense that she is into a comic series, जो cyber security पे जो comic series बना के जिस तरह से communicate करते हैं लोगों को कि cyber city का awareness के लिए, she is part of that particular creation. So very unique, things. आगे और कुछ है, but उसके पहले मैं I want to just introduce her with respect to her own, that it will describe her very well, I feel. ये जो है इनका, she is a poet, और इनका एक poem है artistically incredible. ठीक है? So I will read a few lines. It will describe her very well. I withhold power to hypnotize, withhold power to mesmerize. I don't just work with my hands, for I'm not a laborer. I don't work with my heart and hands, for I'm not a craft woman. I create with my heart, hand and soul, for I am an artist with profound magic, word after word, primordially eternal. So this describes this personality to the maximum, I feel. इसके अलावा नेहा जी अपने लोकल विलेपार्ले अंधेरी एरियाज़ के काफ़ी लोकल बुलेटिन्स में लिखती हैं. गुजराती मिड डे में उन्होंने काफ़ी कुछ लेख लिखा है. उन्होंने, शी इज़ अ इको वॉरियर, अपस्केलिंग और रिसाइकलिंग पे काफ़ी कुछ एम्फसाइज करती हैं, एंड शी लिव्स बाय इट. एंड शी इज़ अ fashion enthusiast. She's got her own unique way of styling herself. You all will see her. And I was very curious to know about it. और मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सबको आप बताएं आपके लैंग्वेज में आप किस तरह से ऐसे यूनिक आपका स्टाइल आपने अडेप्ट किया. And she's a batik artist, and she is also into archaeological marvel awareness, she does. And she is a founder of Hastakshar. ये फेसबुक में एक वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन्स के लिए एम्पावरमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आई थिंक मोर देन 20,000 women entrepreneurs or women who are following her. It's a great achievement, and she calls it as a Diva network. So I think this is a small introduction of a woman who is only less than 5 feet, but her work commands that her stature is much taller than even Amitabh Bachchan, actually speaking. So I think this is what I should say in terms of introduction about from myself. I would not waste further time. I request Neha ji to come and talk about her insights about Ganesha and Me. और Ganesha and Me कैसे आया, क्यों आया, और कैसे वो अपने आप में एक कम्युनिकेशन टूल बना to make people aware of the moral values or societal issues और जो भी बोले. So over to Neha ji. Thank you so much.
Hello, everybody. Thank you so much, sir, for such a wonderful introduction. Thank you so much. Well, I'm nobody. I'm just an very ordinary next door girl. Yes, please. But I'm just an ordinary next. I'm the highlight of me. You can say I'm Bapa's bhakt. Bapa mere pita hai. He's my dad. And coming to the point that, why do I dress differently? So I would like to add a story. See, I'm just 5 feet in height. When I was in college, तो हमारे college में, सारी day होता था. And तो select तो हो जाती थी, लेकिन final round में, so the jury used to ask me, height कितनी है? What is the height? And disqualified, because generally what we define as beauty is all about good, proper height, proper shape, and I was very skinny and just a short female. So it used to get really annoyed, yaar, ऐसे कैसे? ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं कर सकती यार? So I created my own way. Now people follow me for my sari. This is a dupatta. This is my pants, and I can carry it very easily the way I want. I can run. I can do marathons. I can do weights. So that's my way. It's my way. So that's all about it. I'm valuing our Indian culture as well, and I'm a free soul. So that's about the dressing. And coming back to Ganesha and me. What is Ganesha and me? So as I said, I am Bapa's bhakt. So I thought of, crafting certain stories, moral values, जो सुन के हम बड़े हुए, हम सबको पता है, we all know it, but somewhere down the line, हम थोड़ा सा उसको neglect करने लगे हैं. So that is all about Tales of Ganesha and me, जिसमें गणपति बापा मेरे पिता, मैं उनकी बेटी, और साथ में रहते हैं उंदेर मामा. महाराष्ट्र में जैसे नॉर्थ में हम मुशक जी कहते हैं, यहाँ पे हम उंदेर मामा कहते हैं. उंदेर मामा इज़ वेरी नॉटी. वी लव ईच अदर, लेकिन वी कांट स्टैंड ईच अदर. जैसे भाई बहन का होता है, वी कांट स्टैंड ईच अदर. एंड उंदेर मामा तो बड़े मनमौजी है. कभी वो अर्नब गोस्वामी बन जाते हैं, तो कभी वो रजत शर्मा, कभी वो बाबा रामदेव बन जाते हैं, या कभी भोजपुरी एक्टर, जैसी उनकी मर्जी. दिन में 3 अवतार रहते हैं. इट्स ऑल अप टू हिम. हम उनको कुछ नहीं कह सकते, और हमेशा मेरी टांग खींचते रहते हैं. सो दैट्स उंदेर मामा. एंड ऑल द स्टोरीज रिवॉल्व अराउंड. सो बेसिकली आई एम द विलन ऑफ द स्टोरी. एंड आई हैव माई ओन ईगो प्रॉब्लम्स, और कैसे, जैसे अगर मान लो मेरा आईफोन घूम गया, तो पापा ऐसा नहीं कहते ले मैजिक हो गया. आई हैव टू गो थ्रू, एंड कैसे सारी चीज़ें मुझे रियलाइज़ कराई जाती है कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है. सो आर यू रेडी फॉर द जर्नी टू लिसन फ्रॉम टेल्स ऑफ गणेशा एंड मी? ओके. मैं मानती हूँ हम सबके एक आराध्य होते हैं, राइट? बहुत सारे भगवान हैं, हम सबको मानते हैं. कोई माता जी को मानता है, शिव भगवान को, हर एक फॉर्म को मानता है. वैसे मैं गणपति बापा को मानती हूँ. तो ये स्टोरी, लेकिन ये पहली स्टोरी मैं नरेट करी हूँ, लेकिन मैं टाइटल पहले नहीं बताऊँगी. टाइटल मैं लास्ट में बताऊँगी. हम जर्नी को लेते हैं. एंड माई लैंग्वेज वुड बी इंग्लिश, हिंदी, थोड़ा सा गुजराती या मराठी भी आ गया. सो मिक्स ऑफ ऑल द लैंग्वेज. ओके. I don't have a very, very profound vocabulary, like way we speak, वैसे ही रहेगा मेरा बोलना. Okay? Okay, so I begin with the first story. Shri Ganeshaya Namah. I'm beginning. So it's a Sunday morning, beautiful Sunday morning. सूर्य की सौम्य सौम्य किरणें पड़ रही है, और गणपति बापा अपनी रिक्लाइनिंग चेयर पे बैठे हुए हैं और मसाला चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं. और मैं क्या देख रही हूँ, गणपति बापा के पास एक मेज़ है, और वहाँ पे इतना मोटा और वेरी थिक रेड बुक वहाँ पे है. और बापा क्या कर रहे हैं, वो बुक का एक पन्ना पलट रहे, एंड ही स्माइलिंग, मंद मंद मुस्कुरा रहे. नो, ही इज टर्निंग पिंक, ही इज ब्लशिंग. ऐसा कुछ 10 मिनट तक चलता रहा. फिर मुझसे रहा नहीं गया, और मैं दौड़ के गई और मैंने बोला जय गणेश बापा. बापा ने कहा शुभम भवतु. मैंने बोला बापा क्या है ये? पापा ने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं. अरे कुछ नहीं क्या बापा, बोलो ना ये क्या है? पापा ने कहा गिफ्ट. गिफ्ट? लेकिन आपका बर्थडे तो अभी नहीं है, किसने आपको दिया? माता पार्वती गौरी ने. माता पार्वती गौरी यहाँ पे आए थे, आपने मेरे को मिलाया भी नहीं यार, बहुत दिन हो गए मैं उनसे मिली नहीं. आई वांटेड टू मीट हर. पापा इज लाइक शी वाज इन अ हरी, वो बहुत जल्दी में थी इसलिए. लाइक ओके पापा. लेकिन ये बुक क्या है? पापा ने कहा माता पार्वती गौरी ने ये बुक बनाई हुई है, और उसमें उन्होंने कहा है कि विश्व में जो लोग मुझे यानी गणपति बापा को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, उन सबका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस इसमें है. मैंने बोला माय गॉड बापा, विश्व में इतने सारे लोग आपसे प्यार करते हैं. एक बात कहो, सच्चे तपेलीमा शीरो અને મારા ગણપતિ બાપા હીરો. તમે તો હીરો છો સચ્ચે બાપા.
पापा इज लाइक ओके, अच्छा पापा अभी इसका करना क्या है? पापा इज लाइक मैंने माता पार्वती गौरी को प्रॉमिस किया है कि ये है ना, मैं सबको इसकी कॉपी भेजने वाला हूँ। पापा इतने सारे लोगों को कॉपीज भेजनी है, इट्स गोना टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, कम आई विल हेल्प यू, हाँ मैं हेल्प करूँगी। एंड देन आई एम रैंडम क्वेश्चन यू नो आई एम आस्किंग, अच्छा पापा सो पापा इज लाइक माता ने कहा है कि मैं हर साल ऐसी कॉपी बना के दूंगी। हम लाइक वाह पापा, आपका तो फैन फॉलोइंग है, मान कितने सारे फॉलोअर्स है, इंस्टा का एक अकाउंट खोल दो, बहुत सारे फॉलोअर्स है। पापा इज लाइक ओके ओके नो, यू शर्मा रहे हैं पापा। एंड देन आई आस्क, अच्छा पापा मेरे को एक बात बताओ, इसमें सो व्हाट्स योर नेम? आशीष सर, इसमें आशीष जी का ये लिस्ट में नाम है? पापा ने कहा है। मैंने बोला कौन से नंबर पे? तो पापा इज लाइक 1000वें पे नंबर है। मैंने बोला 1000वें नंबर पे, दैट्स वेरी बैड, आई थिंक ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, उसमें वो हितेन जी का नंबर है? पापा ने कहा है। कौन से नंबर पे है? पापा ने कहा 100वें नंबर पे। गुड, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। हाँ, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसमें संदीप जी का नंबर है? पापा ने कहा हाँ है। कौन से नंबर पे है? 5th नंबर पे। पापा मुझे पता ही था, यू नो वो संदीप जी ना ऐसे नाटक करते ना कि वर्ल्ड में उनसे बड़ा गणपति भक्त कोई नहीं है। देखो 5th नंबर पे है। आई न्यू इट पापा, आई न्यू इट। अच्छा पापा एक बात बताओ, सबसे पहला नाम किसका है? मेरा ही होगा ना सबसे पहला नाम? पापा इज लाइक नहीं, मेरा नाम सबसे पहले नहीं है। पापा इज लाइक नहीं। अच्छा तो 2nd नंबर पे? नहीं। 3rd नंबर पे? नहीं। नाम गेटिंग एनॉयड यार। संदीप जी के पहले? नहीं। बोलो वो संदीप जी भी मुझसे पहले, मैं आपकी बेटी, मेरा नंबर ही वो भी। अच्छा हितेन जी के पहले? नहीं। एंड यू नो सबका नाम आई एम टेकिंग एंड नाउ आई एम वेरी एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पापा एक बात बताओ, मेरा नाम ये बुक में है भी कि नहीं? पापा इज लाइक नहीं बेटा, तुम्हारा नाम ये बुक में नहीं है, बस फिनिश। ये बुक है ना झोल है। पापा इज लाइक बेटा जरा अपनी शब्दों की मर्यादा रखो, क्या बोल रहे हो आप? ये बुक किसने बनाई है? या सॉरी पापा, ये बुक तो माता पार्वती गौरी ने बनाई, लेकिन माता पार्वती गौरी मेरा नाम लिखना कैसे भूल गई यार? ऐसा। अच्छा पापा ओके, लेकिन एक कैन आई रिक्वेस्ट यू समथिंग? पापा इज लाइक हाँ बोलो। पापा प्लीज़ ये लिस्ट है ना आप सबको भेजना नहीं। आई से पापा ने लाइक क्यों? पापा सब मुझे ट्रोल करेंगे ना। तो पापा इज लाइक वाई वुड एनीबडी ट्रोल यू? तुमको ट्रोल क्यों करेंगे? अरे पापा आप नहीं समझते, हम लोग इंटेलेक्ट का सब चलता है, हम एक दूसरे को ऐसे नहीं कहते, एक दूसरे को तो मिलते हैं हाय हाउ आर यू, ऐसे ही जाके ट्रोल करना होता है, हम जाके ट्विटर पे ट्रोल करते हैं एक दूसरे को। इफ संदीप जी एंड दे ऑल नो दे विल ट्रोल्ड अबाउट इट, पीपल विल लाफ एट मी कि बोलो बापा की बेटी और नाम नहीं है बुक में। पापा इज लाइक नहीं, मैंने तो प्रॉमिस करा है, मैं तो करूँगा। एंड आई एम वेरी एंग्री। ओके पापा आपको जो करना है करो, जाओ। एंड आई गो इन माई रूम, मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। 10 मिनट के बाद पापा आते हैं एंड मैंने ऐसे पापा को कभी नहीं देखा, यू नो बहुत सैड से है। मैंने बोला पापा क्या हो गया? पापा इज़ लाइक बेटा आज मुझे बहुत बुरा लगा, तुमने मेरा आज बहुत दिल दुखाया। एंड सी आफ्टर ऑल आई एम हिज डॉटर यार, मुझे बुरा लगा। आई एम लाइक सॉरी पापा, क्या हो गया पापा? पापा ने कहा बेटा तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अब लाइक पापा हुआ क्या? पापा ने कहा बेटा तुमने एक बार भी मुझे ऐसा पूछा कि वो संदीप जी ने क्या किया कि उसका नाम नंबर 5th पे आया है, या किसी ने क्या किया कि उसका नाम नंबर 1 पे आया है, या किसी ने ऐसा क्या किया है कि उसका नाम ये बुक के अंदर है? नो यू डिडंट आस्क मी दैट क्वेश्चन। यू द मोमेंट आपको पता चला कि आपका नाम ये बुक में नहीं है, बस आपकी रिलेटिबिलिटी वो बुक से ख़त्म हो गई एंड यू सेड कि ये बुक ये है। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की कि अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से हो तो ठीक है, लेकिन नहीं हो तो सिस्टम ख़राब है, करप्ट है, ये है। खुद में क्या है वो आपको देखना नहीं है। यू जस्ट वॉन्ट टू ब्लेम अदर पीपल एंड आई एम लाइक आई एम सॉरी पापा, आई एम वेरी सॉरी पापा, प्लीज़ बस आप मुझे बताना कि क्या किया एंड आई विल हेल्प यू टू कुरियर दिस बुक्स। ओके आई एम सॉरी, आई विल हेल्प यू आउट पापा। पापा ने कहा माना मेरी बेटी, ये लिस्ट है जिससे जो विश्व में मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसमें तेरा नाम नहीं है, कोई बात नहीं, ये देख मेरी बेटी। एंड ही शोइंग मी अ स्मॉल चिट। आई सेड पापा ये क्या है? पापा ने कहा बेटा ये वो लिस्ट है जिसे विश्व में मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरी बच्ची तेरा नाम उसमें सबसे पहले है।
સો वो कहते हैं ना ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે જિંદગીના રસ્તા તો सीधा હોય છે, આપણા મનના વળાંકો જ આપણને નડે છે. यू नो इट्स अबाउट अस, हमारे नज़रिए की बात है. एक छोटा सा वाक्या शेयर करूँगी. आज सुबह को यू नो मॉर्निंग में वरांडा में एक मोर पंख था. मैंने कहा, पापा बैठे थे, मैंने कहा वरांडा में मोर पंख, ज़रूर मोर आया होगा. पापा ने कहा नहीं, ज़रूर मोर पंखधारी घनश्याम जी आए होंगे. आई एम लाइक हाँ. पापा इज़ लाइक ये तो नज़रिए की बात है ना, तुम जो समझो वैसा ही सही. आई एम लाइक यस, इट मेक्स सेंस. व्हाट डू यू थिंक, डज इट मेक सेंस? So that was our first story, and the title of the story was Who Loves Bappa the More? I'm still to figure out who loves Bappa the more. Are you the one who loves Bappa the more? So this is our first story. I hope you like the story. Thank you so much. Yeah, okay. Moving on to our next story. एज़ यूजुअल टाइटल अभी मैं नहीं बताने वाली, हम लास्ट में टाइटल को डिस्कस करेंगे. हम लास्ट में टाइटल को डिस्कस करेंगे. सो शनिवार की शाम है, इट्स एन ब्यूटिफुल इवनिंग. बापा अपने रिक्लाइनिंग चेयर पे बैठे हैं और मसाला चाय एज यूजुअल पी रहे. यू नो आई एम अ टी लवर, सो आई लाइक टू पोर्ट्रे बापा लाइक दैट. सो मसाला चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं. एंड उंदीर मामा, यू नो, he's just turned upside down. I'm presuming कि वो बाबा रामदेव बने हैं, you know, and I'm looking at it. I said, उंदीर मामा क्या कर रहे हो? So he's like, don't stop. I'm like, okay, I'm sorry. And मैं इतनी सारी bags लेके आती हूँ. बापा is like, बेटा आप कहाँ थे आप सुबह से? And इतने सारे bags. I'm like, बस क्या बापा, भूल गए, गणेश चतुर्थी आ रही है. So बापा is like, so? I'm like, Bappa, I had gone shopping. I was a shopping spree today. Bappa is like, shopping? I'm like, yes, Bappa. See, and with all the enthusiasm, मैं सब दिखा रही हूँ बापा को. बापा ये देखिए, ये मैंने आपके लिए कुर्ता बनवाया, धोती, एंड ये देखो मोजरी. बापा ये देखो पगड़ी. एंड उंदीर मामा को भी दिखाया. उंदीर मामा इज लाइक, हे भगवान, अच्छा है तुम्हारे चेहरे जैसा नहीं है, फॉर अ चेंज अच्छा है. आई एम लाइक, प्लीज उंदीर मामा कभी तो अप्रिशिएट कर लिया करो. एंड देन ही रैन अवे. एंड बापा इज लाइक, मैंने कहा बापा कैसा है? बापा इज लाइक, बहुत सरस है, वेरी ब्यूटिफुल. आई एम लाइक, सी बापा, यू नो बापा, सुबह से आई वेंट टू बाई दिस क्लॉथ. में टाउन गई ये कपड़ा लेने के लिए, फिर इसकी लेस मुझे पता चला कि ये सेंटा क्रूज में ही मिलेगी. आई वेंट टू ऑल द वे टू सेंटा क्रूज, और इसकी ये मेरी डिज़ाइनर है, उसको गन पॉइंट पे बिठाया और बोला अभी का अभी तैयार कर. विद इन 2 आवर्स ये मैंने सारे कपड़े तैयार करवाए बापा आपके लिए. कैसे हैं? बापा इज़ लाइक, वेरी नाइस, बहुत अच्छे हैं. अच्छे लगे ना पापा आपको? पापा इज लाइक बहुत अच्छे लगे. लाइक ओके, आई एम टायर्ड. एंड पापा एंड उंदीर मामा टॉकिंग समथिंग, यू नो, आपस में कुछ बात कर रहे हैं. एंड आई एम लाइक यार 2-3 घंटे हो गए, मैंने एक रील अपलोड नहीं की, मैंने अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं देखा. एंड आई एम जस्ट लुकिंग इन माई फ़ोन, यू नो, मैं चैट कर रही हूँ. एंड मैं क्या देखती हूँ, उंदीर मामा दौड़ के गए और कुछ लेके आया. आई एम लाइक होगा कुछ. उंदीर मामा, यू नो, इट डजंट मेक सेंस, ऐसा ही करते रहते हैं कुछ. और मैं क्या देख रही हूँ यार, उंदीर मामा इतनी बड़ी कैची लेके आए. एंड बापा इज पुटिंग दैट कल्ची. आई एम लाइक बापा होल्ड ऑन, क्या कर रहे हो बापा? बापा इज लाइक, आई एम कटिंग दिस ड्रेस. आई एम लाइक बापा ये आपका गिफ्ट है. बापा इज लाइक, यू गिव इट टू मी राइट? किसको दिया है आपने? मैंने बोला बापा आपके लिए. पापा इज लाइक ओके हाँ. तो मैंने बोला पापा आपको अच्छा नहीं लगा क्या ये गिफ्ट? पापा ने कहा नहीं बेटा मैं कीधु ने बहुत सरस है, बहुत अच्छा है. सो आई एम लाइक पापा फिर? पापा इज बिकॉज आई वांट टू कट इट. लाइक पापा ये क्या तरीका होता है यार, कोई आपको गिफ्ट दे, डू यू जस्ट टेल मी, आप किसी को गिफ्ट दो तो वो गिफ्ट को हमको खराब करना चाहिए, वो भी उसके आंखों के सामने, और इवन उनके बात करना चाहिए. हम लाइक ये पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? आई सेड पापा प्लीज डोंट डू इट यार, डोंट डू इट. मैंने कितने, मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई है, मेरे इमोशंस जुड़े हुए, मेरा प्यार जुड़ा हुआ है, प्लीज डोंट कट इट यार. पापा इज लाइक नहीं मैं तो इसे कट करूंगा. नाउ आई कांट स्टैंड इट यार, पापा ऐसे कैसा कर सकते हैं मेरे साथ. मैं चली जाती हूँ अपने रूम में. 10 मिनट के बाद पापा आते हैं ना, मैं रोने भी लगती हूँ यार. मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे. पापा आ गए. पापा कह रहे हैं. मैंने बोला पापा
आपने वो काट दिया? पापा ने बोला नहीं अभी नहीं, लेकिन काटूंगा। मैंने बोला पापा 1 मिनट यार, आपको वो गिफ्ट काटना क्यों है? वाई यू वॉन्ट टू कट इट यार, क्यों? आई ओ एन आंसर, प्लीज टेल मी, आपको ये वो कट क्यों करना है? Bappa is like, I had a fight with my brother Kartike. I'm like, oh God, Bappa, just because you had a fight with your brother, तो उसका गुस्सा क्या आप इस पे उतारोगे क्या? पापा ने बोला लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, why are you feeling bad about it? ये कपड़ा क्या तुमने बनाया है? I said, Bappa, I am not a weaver, मैं कपड़ा कैसे बनाऊं? No. Bappa is like, then ये लेस क्या तुमने बनाई है? I'm like, Bappa, no. How can I make a lace? तुम्हें सिलाई काम तो आता नहीं है, तो अरे पापा कपड़ा नहीं बनाया तो क्या यार, आई गॉट इट मेड यार, माई इमोशंस, माई थॉट, मेरा सब जुड़ा हुआ है, एंड इट इज फॉर यू एंड गिवन बाय मी. पापा आई टेल यू दिस इज वेरी रॉन्ग, आई एम नॉट लाइकिंग इट. पापा ने कहा वाह बेटा, अभी तो तुमसे ज्ञान बरस रहा है, नाउ हैंग ऑन, वेट करो. और 2 महीने पहले क्या हुआ था? हम लाइक 2 महीने पहले क्या हुआ था पापा? Bappa is like, somebody tried to commit suicide, and I'm like, Bappa is like, तुम बोलना चाहोगी क्या हुआ था? So guys, let me tell you, in this story, I'm a college going girl, you know, and मेरा एक लड़के के साथ relationship था. We were very steady, and we were about to get married also. लेकिन for some reason we broke up. The guy, he broke up with me, and I couldn't take it. मुझसे, I mean, you know, we were very, हम बहुत ही सीरियस थे एक दूसरे के लिए, बट वी ब्रोक अप एंड आई कुडंट टेक इट, सो आई ट्राई टू कमिट सुसाइड. पापा ने कहा कि तो तुमने क्या करने का ट्राई किया? एंड लाइक पापा हाउ इज दैट रिलेटेड? पापा इज लाइक, सोचो, ये कपड़ा तुमने नहीं बनाया, ये लेस तुमने नहीं बनाई, तुमने सिया नहीं, सिर्फ तुमने मुझे प्रेजेंट, दैट आइडिया वॉज योर्स, मैं उसे काटने जा रहा हूँ तो तुमको इतना बुरा लगा. ये तुम्हारी जो लाइफ है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी है? नहीं, वो मैंने तुम्हें दी है. एंड यू पीपल, जस्ट बिकॉज यू डोंट गेट अ आईफोन, पेरेंट्स आपको स्टे ओवर के लिए नहीं जाने देते, या शेयर मार्केट में लॉस हुआ, यू जस्ट वांट टू कमिट योर सुसाइड. डू यू नो आप क्या कर रहे हो? व्हाट डू यू थिंक? ये ज़िंदगी तुम्हारी है? नहीं, ये तुम्हारी नहीं है, ये मेरा दिया हुआ आप सबको एक उपहार है. एंड आई एम लाइक, यस दैट्स राइट. आई मीन, अगर हमारी दी हुई कोई गिफ्ट स्पॉइल करे तो हमको, आवर लाइफ इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. और मुझे पापा कहते हैं कि बेटा वो लड़के को तो दूसरी रानी मिल जाएगी, लेकिन तेरे पिता को यानी मुझे दूसरी राजकुमारी कहाँ से मिलेगी? मेरे लिए तो तुम सिर्फ एक हो. सो फॉर ऑल द पीपल इन टू ब्रोकन रिलेशनशिप और यू नो एनी काइंड ऑफ लॉस, life is a life, people around us, value the people around us and relation around us. Do you think it makes sense? उतने में उंदेर मामा दौड़ के आए, और उंदेर मामा, you know, he's trying to make a शायरी out of it. No, so I am first, उंदेर मामा, I am like, hang on उंदेर मामा, मैं बताती हूँ. चाहने के अंदाज अलग, प्रेम के अंदाज अलग, थी वो लकीरों की सारी बातें, उसके हाथ अलग, मेरे हाथ अलग. तो उंदेर मामा इज लाइक, ए रेवा देने, हूँ तने कहूँ छू, सितारे लाख कोशिश कर दे तुम्हें गलत इंसान से मिलाने की, तेरे बापा और उंदेर मामा ने नक्की कर रखा है तेरी सुरक्षा करने की. आई एम लाइक, उंदेर बाबा चलो, कुछ राइम वाइम हो नहीं रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट, द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ लाइफ इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड. यू नो, हमें कोई अधिकार नहीं है कि यू नो वी शुड एंड इट अब्रप्टली. यू नो, वी ऑल आर सेंट ऑन अ मिशन, यू नो, बाय गॉड, and we have to live by it. Do you all agree about it? I hope you're having a good time. Yes? Okay. Moving on to a very next story. Okay. As usual again, मैं आपको टाइटल नहीं बताने वाली. अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, कुछ सुबह के 4, 4:30 बजे है. एंड मैं देख रही हूँ, एंड यू नो आई एम अर्ली राइजर, मैं बैठ के योगा कर रही हूँ, और मैंने देखा कि बापा कहीं से आए हुए हैं. मैंने बोला, बापा जय गणेश. बापा इज़ लाइक, शुभम भवतु. मैंने बोला, बापा क्यांથી આવે છે સવારી, આટલી સવારે સવારે इतने सुबह सुबह कहाँ गए थे? बापा इज़ लाइक, ऑन माई मिशन. आई एम लाइक, व्हाट मिशन बापा? बापा इज़ लाइक, तुम नहीं समझोगे. अरे बापा समझाओ ना, क्या मिशन है आपका? सो बापा इज़ लाइक,
हर जगह पे जब बच्चे जन्म लेते हैं तो मैं हर जगह पे बच्चों के पास जाता हूँ और उनके कान में उनके जीने का ध्येय क्या है वो बताता हूँ. आई एम लाइक पापा आप हर बच्चे के कान में जाके बताते हो उनके लाइफ का मोटिव क्या है, सीरियसली? पापा इज लाइक यस. पापा आपने जब मैं बॉर्न हुई थी तब आपने मुझे भी बताया था. पापा इज लाइक यस. मैंने बोला पापा क्या बोला था? पापा इज लाइक क्यों तुम्हें याद नहीं है? अरे पापा मुझे कैसे याद होगा, मैं तो बच्ची थी न्यू बॉर्न, मुझे कैसे याद होगा? पापा इज लाइक यही तो बात है ना, तुम अपने लाइफ में रूटीन में अपने जीने का ध्येय क्या है वो तुम लोग भूल जाते हो, यू फॉरगेट. आई एम लाइक ओके. अच्छा मैंने बोला आज कहाँ पे गए थे? पापा ने कहा कि आज शीला जी वहाँ पे थे, उनकी बहू को बेटी हुई है तो मैं वहाँ पे गया था. आई सेड पापा आपने उनके कान में क्या कहा? पापा इज लाइक आई गेव अस ब्लेसिंग. अच्छा चल मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब तुमने जन्म लिया था मैंने क्या बोला था. लाइक यस पापा बताइए आपने क्या बोला था? पापा ने कहा था, मैंने कहा सुखी रहो, अपने कुल की सरस्वती बनो. आई एम लाइक हैं पापा थोड़ा सा वियर्ड नहीं है? जनरली लड़कियां का जन्म होता है तो हम कहते हैं ना कि लक्ष्मी बनना अपने कुल की, सरस्वती थोड़ा सा ये नहीं लगता? पापा इज लाइक तुम लड़कियां हो तो तुम बाय डिफॉल्ट लक्ष्मी तो तुम हो ही. तो मैंने बोला लेकिन सरस्वती. पापा ने कहा क्यों? जब एक लड़की जन्म लेती है, वो पढ़ती है, वो अपने पिता का सोच समझने के तरीके चेंज कर देती है, अपने घर के माहौल को चेंज करती है, शादी करके जिस घर में जाती है हस्बैंड के तौर तरीके को चेंज करती है, और बहुत सारी तुम जैसी अपनी सास के भी तौर तरीकों को चेंज कर देती है. आई एम लाइक हाँ बापा इज टेलिंग मी, वो कहते हैं ना मुलगी शिगली प्रगति जाली. आई एम लाइक yes bappa. So the whole idea is when a girl is born, she's not just a Lakshmi, she's also a Saraswati, and having a right education is very very important. Without a Saraswati, Lakshmi ji नहीं वो सही, दोनों साथ में होने चाहिए. So use your brain sparingly, you invest sparingly. Do you agree? And the very important part to be added here. So मैंने पापा को पूछा, पापा ने मुझे पूछा कि तुम कौन हो? I'm like पापा I'm a girl, I'm a woman. Papa is like what kind of a woman? I'm like Papa I'm a empowered woman. Papa is like okay. So I'm like Papa what does an empowered woman do? आप बताइए क्या? Papa is like तुम बताओ. I'm like Papa an empowered woman वो होती है they are created in a space कि जो मैन कर सकते हैं वो भी वुमेन कर सकती है, इसलिए हमें बनाया जाता है. पापा उंदीर मामा सिटिंग देयर, गलत जवाब. आई एम लाइक सॉरी पापा, एक्चुअली एम्पावर्ड वुमेन वो होती है जो मैन नहीं कर सकते ना, उसके लिए हमें बनाया गया है. उंदीर मामा गलत जवाब. आई एम लाइक 1 सेकेंड. जो मैन कर सकते हैं वो करने के लिए भी नहीं बनाया है, जो नहीं कर सकते उसके लिए तो फिर क्यों बनाया है? तो उंदीर मामा कहते हैं कि मैंने एक स्टोरी सुनी है कि भगवान ने पहले धरती यानी यूनिवर्स को बनाया, फिर भगवान ने आराम किया, फिर भगवान ने पुरुषों को बनाया, फिर आराम किया, फिर स्त्रियों को बनाया, फिर आराम करना ही भगवान भूल गए. आई एम लाइक प्लीज आओ उंदीर मामा, ऐसा कुछ नहीं होता है. चलो आई एम लाइक बोलो ना पापा, आई एम सॉरी आई गिव अप. चलो मैं आई गिव अप. वुमेन को क्यों बनाया गया है? तो पापा ने कहा वुमेन को इसलिए बनाया गया है कि जो चीज़ तुम्हें करनी है उसी के लिए बनाया गया है. फॉरगेट अबाउट दिस वॉर के वाई मैन आर क्रिएटेड और वाई वुमेन आर क्रिएटेड. एवरीबडी ऑफ यू, हर एक जन जो कार्य के लिए आप बने हो उसी के लिए आपका जन्म हुआ है. सो आई एम लाइक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. पापा इज लाइक तुम मानते हो कि एयर इज एवरीवेयर? आई एम लाइक यस मैं मानती हूँ एयर इज एवरीवेयर. तुम मानते हो भगवान इज एवरीवेयर? आई एम लाइक यस. कैसे है भगवान? आप गोपी जी जैसे तो शुद्ध नहीं हो कि साक्षात आपको दर्शन होंगे. आई एम लाइक आई एग्री. तो आप मानते हो हर एक इंसान के अंदर आत्मानी अंदर परमात्मा આપણે જેમ કહીએ है? आई एम लाइक यस मानती हूँ. बिकॉज अभी मान लो कि मुझे माँ के हाथ की चंपी करवानी है, तो मैं तुम्हारे फॉर्म में जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारी चंपी करती है तो उसकी अनुभूति मुझे भी होती है. मुझे जब भूख लगती है, जब कोई माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है तो उसका स्वाद मुझे भी मिलता है. सो यू आर क्रिएटेड फॉर अ रीज़न व्हाट you are meant to do. Forget about anything. Do you agree? So henceforth अगर कोई बोले women are created for this, men are created, this is all wrong. We are just created for a purpose.
I hope everybody is liking it, and thank you so much. Thank you. Thank you. And moving on to our next story. Okay. रात्रि का समय है, बहुत ही, इट्स अ वेरी लेट नाइट. ओके, हो गया है, एंड गणपति बापा सोने की तैयारी कर रहे हैं. ही इज़ ऑल रेडी टू स्लीप. और उतने में बापा का मोबाइल बजता है. बापा फ़ोन उठाया, एंड बापा का मुंह, आई मीन ही इज़ वेरी सैड, उदास हो गए बापा. एंड बापा इज़ लाइक ठीक है. अब मैं और उंदीर मामा देख रहे हैं, मैं उंदीर मामा को इशारा कर रही हूँ, क्या उंदीर मामा इस पता नहीं क्या है. मैंने बोला क्या हो गया बापा, आप इतने उदास क्यों हो. पापा ने कहा माता पार्वती गौरी का फ़ोन आया था. मैंने बोला पापा यार वो लास्ट टाइम आया था, आपने मेरे को मिलवाया नहीं, फ़ोन आया था तो भी नहीं दिया यार, एक बार दे देते, बात नहीं हुई है बहुत टाइम से. पापा इज़ लाइक देयर इज़ अ सीरियस मैटर. आई एम लाइक पापा क्या हो गया है. पापा इज़ लाइक माता पार्वती गौरी ने कहा है अभी से जो सार्वजनिक गणपति उत्सव होगा वहाँ पे अभी गणपति उत्सव होना बंद हो जाएगा. गणपति यानी मुझे नहीं भेजेंगे धरती पे. आई एम लाइक व्हाई, क्यों. पता नहीं, माता बहुत क्रोधित है, बहुत गुस्से में है, मना कर दिया. यार ऐसा क्यों बोल रही है माता, क्यों नहीं भेजेंगे आपको यार. पापा इज लाइक डोंट नो. मैं उंदीर मामा प्लीज़ माता जी से बात करो ना, कुछ करो ना. उंदीर मामा इज़ लाइक डोंट वरी, मैं बात करता हूँ. उंदीर मामा कॉर्नर में जाके छुप छुप के कुछ बात कर रहे हैं. एंड लाइक ठीक है माता. एंड सर क्या हो गया. उंदीर मामा लाइक कल बात करते हैं. एंड आई एम क्राइंग यार, आई एम बापास भक्त. जस्ट इमेजिन हम सब भी बहुत सारे लोग, राइट, कितने सारे लोग घर पे गणपति लेते हैं. जस्ट इमेजिन गणपति उत्सव में गणपति आना बंद हो जाए, कैसा लगेगा. यू नो इट्स एन, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इट्स अ बिग फेस्टिवल. लाल बागचा राजा, यू नो गिरगामचा राजा, वी ऑल गो, हम दर्शन करने जाते हैं. अंधेरीचा राजा. यार बापा आना बंद हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू. आई एम वेरी अपसेट. बहुत आई एम क्राइंग, आई एम सॉबिंग, बहुत रो रही हूँ मैं. सुबह को एंड रोते रोते मैं सो जाती हूँ. सुबह के 4 बजे गणपति उंदीर मामा आते हैं, बोले उठो. मैंने बोला क्या हुआ. माता पार्वती गौरी आ रहे हैं. लाइक आ रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे आ रहे हैं. बोला आप जल्दी से तैयार हो जाओ. और मैं ना धो के तैयार हो के जैसे ही मैं अपने दीवान खाने में, अपने हॉल में जाती हूँ, मैं क्या देखती हूँ यार, हमारा पूरा सा हॉल जनता की अदालत बना हुआ है. कोर्ट रूम की तरह उसको सजाया गया है. एंड मैं क्या देख रही हूँ कि 2 विटनेस बॉक्स है, एक पे लिखा है मुजरिम और जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है. मैंने बोला ये क्या है. उंदीर मामा ने कहा मैंने माता पार्वती गौरी को बुलाया है, वो जज है एंड मैं आपका वकील रजत शर्मा, यू नो, एंड ही इज बिकम अ वकील. आई एम लाइक ओ गॉड. एंड डोर बेल रिंग्स. मेरे हार्ट बीट्स के पूरे माता पार्वती गौरी आ गए. मैं क्या देखती हूँ, 1 10 20 50 उंदीर मामा की गैंग. उंदीर मामा की गैंग है, छोटे छोटे उंदीर है, हम उसे टपोरी गैंग कहते हैं. उंदीर मामा उसे टपोरी गैंग कहते हैं. उंदीर मामा के सारे टपोरी गैंग पूरे आए हुए हैं और जाके ऑडियंस में बैठ गए. एक ढोल नगाड़े. आई एम लाइक व्हाट्स हैपनिंग यार, ये हो क्या रहा है. उंदीर मामा कहते हैं चलो जाके अपनी जगह पे खड़े हो जाओ. गणपति बापा भी आए हुए हैं, लेकिन गणपति पापा बहुत उदास है, बैठे हुए. मैं पापा को बापा प्लीज़ कुछ मैजिक करो. पापा इस लाइक देखो माता क्या कहती है, माता के सामने नहीं चल सकती, जो माँ कहे वो मानना पड़ेगा. आई एम लाइक या. उतने में शंखनाद होता है, यू नो, कोयल, द ककू स्टार्ट्स चर्पिंग इन. कोयल बोलने गाना शुरू कर देती है. एक दिव्य सी ज्योति आती है और माता पार्वती गौरी पधार रही है. कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माता पार्वती गौरी. कैन वी वेलकम हर प्लीज. माता पार्वती गौरी लाल साड़ी पहन के इतनी सुंदर लग रही है माता. गणपति बापा जाके पहले चरण स्पर्श करते, उंदीर मामा उनकी टपोरी गैंग जाके माता पार्वती गौरी के, और मैं जाती हूँ तो माता ने मेरा हाथ रोक लिया, कहा नहीं नहीं बेटी पैर नहीं छूती, और गले लगा लिया. और फिर उंदीर मामा कहते हैं और अब हम शुरू करते हैं जनता की अदालत, माता की अदालत. इस माता की अदालत में पहला इल्जाम डिग 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 करके पहला इल्जाम है, ये ना मनुष्य बड़े दोगले हैं. ये क्या करते हैं कि उंदीर मामा कहते हैं ये बोलने से पहले 1 सेकेंड, ये बोलने से पहले मुझे एक बात बताओ. लास्ट वीक तुम्हारी एक दोस्त ने कार्निवल किया था, तुम
वहाँ पे अपने बेटे को क्यों नहीं लेके गई? आई एम लाइक, उंदीर मामा, वो कार्निवल किया था लेकिन आपने देखा था कितनी गंदी जगह पे, इट वाज सो शैबी, इट डजंट मैच आवर स्टेटस, हम नहीं जा सकते. एंड खाना वाज, ओ गॉड, इतना गंदा था. मैं अपने बच्चे को कैसे लगा. पॉइंट टू बी नोटेड माता जी, देखो ये खुद अपने बेटे को वैसी जगह पे नहीं लेके जाती, लेकिन सोचती है कि माता अपने बेटे को ऐसी ऐसी जगह पे भेजे. जब गणपति आते हैं ये लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करके नाचते नाचते बापा को ऐसे वेलकम करते हैं, ऐसी जगह से बापा आएंगे. एंड आई एम क्वाइट, बिकॉज देर आर सर्टेन पीपल हु डू दैट, राइट, लोग ऐसा करते हैं. आई एम लाइक, ओ गॉड. फिर उंदीर मामा मुझे पूछते हैं कि गणपति उत्सव तुम्हारे लिए क्या है? आई एम लाइक, मेरे लिए मान है, सम्मान है. प्लीज डायलॉग बाजी मत करो माता, मैं आपको बताऊं गणपति उत्सव इनके लिए क्या है. माता जी इज लाइक, क्या है? इनके लिए ना अपना स्टेटस फ्लॉन्ट करने की चीज़ है. हम लाइक, उंदीर मामा आप क्या बोल रहे हो? कोई गणपति उत्सव में अपना स्टेटस थोड़ी फ्लॉन्ट करता है बाप. उंदीर मामा इज लाइक, माता आपको पता है बहुत सारे लोग 10-10 घंटा 12-12 घंटा लाइन में खड़े रहते हो और इन जैसे वीवीआईपी करके स्ट्रेट इन वॉक इन जाते हैं, दर्शन करते हैं और चले आते हैं. पासेस, यू नो, दे पे मनी. गणपति उत्सव क्या भगवान के पास जाओगे तो अपना पैसे का रोब जताने जाते हो? क्यों जाते हो अपने भगवान के पास? एंड आई एम क्वाइट, बिकॉज मैनी ऑफ अस, मैनी पीपल, दे डू दैट, राइट. आप जाओ, यू नो, यू बाय वीआईपी पास, वीवीआईपी पास, हमको लाइन में नहीं खड़ा रहना. आई एम लाइक, ओ गॉड, मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं. उंदीर मामा एक एक करके हर एक पॉइंट पकड़ रहे हैं. फिर उंदीर मामा कहते हैं, माता आपको पता है जब गणपति आते हैं ना तो ये लोग क्या करते हैं, आइडली क्या पंडालों पे क्या बजाना चाहिए, भजन. ये लोग बॉलीवुड, इंडी पॉप एंड इतने इतने वल्गर सॉन्ग्स बजाते हैं. तुम अपने बच्चों को सुनने देती हो ऐसे गाने? हम लाइक, नहीं. तो माता क्यों सुनने दे अपने बच्चे को ऐसे गाने? आई हैव नो काउंटर, ही इज राइट. फिर उंदीर मामा कहते हैं, माता आपको पता है जैसे ही गणपति उत्सव आता है ना, कुछ बुद्धिजीव ये मनुष्य के जाग उठते हैं, बोलते हैं गणपति पे मिठाई मत दो, उससे अच्छा बच्चों को बुक्स बांट दो, उससे अच्छा किसी को दूध पिला दो. अरे भाई, जब तुम्हारा बर्थडे होता है तो तुम केक काटते हो. आई एम लाइक, उंदीर मामा हम ऑर्फनेज भी जाते हैं. ऑर्फनेज जाते हो फिर केक काटते तो हो ना? आई एम लाइक, हाँ. 31st की पार्टी, 31st में ऐसा बोला कि अरे भाई तुमको क्या लेना देना, लेकिन सबसे ज़्यादा पार्टियाँ तुम लोग ही करते हो 31st की. तो कभी ऐसा बोला 31st की पार्टी क्यों करते, किसी को खाना खिला दो? नहीं, जब अपना पर्व आएगा तभी तुमको सारा ज्ञान आता है. एंड आई हैड नो काउंटर, मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था. दैट्स सो ट्रू. एंड बापा इज लाइक, उंदीर मामा, माँ मेरा लास्ट सवाल इनसे, आप बताओ कोई. उंदीर मामा इज लाइक, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैं तुमको 2 चाटे मारूँ तो क्या आपका बेटा खुश होगा? आई एम लाइक, नहीं हो, नो. उंदीर मामा इज एग्जैक्टली, तुम पर्यावरण को, प्रकृति को हार्म करके तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम बापा को खुश कर सकते हो? हाउ विल बापा बिकम हैप्पी? यू आर हार्मिंग द एनवायरमेंट. उंदीर मामा कहते हैं, माता आपको पता है इन लोगों में ना कंपटीशन चलता है कि इतने फीट की मूर्ति, यहाँ पे इतने फीट की मूर्ति. अरे देर इज समथिंग कॉल्ड एज, यू नो, ह्यूमन नॉर्म्स कुछ होता है बहुत ज़्यादा. इट इज़ नॉट राइट, क्योंकि फिर आप लोगों को विसर्जन करने में प्रॉब्लम होता है. आप आते हो नाचते नाचते वो करके चले जाते हो, फिर यू नो आफ्टर 2 days 3 days बापा की हाफ, यू नो, मुख पड़ा हुआ, हाथ कहीं पे पड़ा हुआ. इट टेक्स सो मच ऑफ पेन. वो दृश्य बहुत ही दिल को दहलाने वाले होते हैं. तो आपको कभी शर्म नहीं आती कि आप ऐसा करते हो? या बिकॉज आई एम माई बिल्डिंग सेक्रेटरी एंड आई मेक इट अ पॉइंट के बाजू की विंग से हमारे बिल्डिंग के गणपति, यू नो, बड़े हो. एंड आई एम लाइक, ओ गॉड, दैट्स सो ट्रू, ऐसा ही होता है. एंड उंदीर मामा, माता जी मैं आपको और एक बात बताऊं, जब गणपति आते हैं नीचे पंडाल में आरती हो तो कितने जन आएंगे? 10 जन, 15 जन. अभी फैशन शो रखो, अभी अंताक्षरी रखो, पूरा बिल्डिंग नाच नाच के आता है. पार्टी रखो, तो क्यों? तुमको सिर्फ एंजॉयमेंट, तुम्हारे लिए ना गणपति फेस्टिवल नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ एंजॉयमेंट का एक जरिया है. दैट्स ऑल अबाउट इट. माता मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बापा को मत भेजिए. मैं रोने लगती हूँ और मैं माता को बोलती हूँ, माता
माता इज़ लाइक आपको कुछ कहना है? आई एम लाइक माता मैं मानती हूँ कि हम सबसे मिस्टेक होती है, हम सबसे मिस्टेक हो रही है, बट माता अभी हमारा समाज जागरूक हो रहा है, पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स इको फ्रेंडली मूर्ति। हम लोग, मैं ऐसा नहीं कहती कि पूरा, लेकिन लोग जागरूक हुए हैं। लेकिन पापा आप बाकी को छोड़ दीजिए, कुछ वर्ग ऐसा है कि जिनकी रोजी रोटी लिविंगहुड इसी से चलता है, पापा की मूर्ति बनाकर। या एंड पापा माँ आज के व्हाट्सएप और ये ज़माने में सोशल मीडिया मेटावर्स के ज़माने में ऐसे ही फेस्टिवल्स रह गए हैं कि हम एक दूसरे से मिले, वरना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मीट अवर रिलेटिव्स। अपने मामा, अरे वो तो वहाँ पे डोंबिवली रह रहे, वो तो कल्याण में रह रहे, गणपति है तो वो बहाने एटलीस्ट हम साल में एक बार तो मिलने जाते हैं। माँ प्लीज़ वो कनेक्शन, ह्यूमन से ह्यूमन का कनेक्शन बंद मत कीजिए। मैं मानती हूँ कि हम मिस्टेक करते हैं, बट आई प्रॉमिस वी विल इम्प्रूव, we should improve, right? I'm like, we will improve, Ma, please. Mataji is writing something and Mataji is saying कि माता का ये निर्णय है कि गणपति बाप्पा नहीं आएंगे, and I am crying. माता इज लाइक रुको, मेरा कहने का ये मतलब है बापा अकेले नहीं आएंगे, मैं भी साथ आऊंगी। इसलिए गौरी में माता भी आती है देखने के लिए कि आप लोगों ने ठीक किया है कि नहीं। और वहाँ पे नासिक ढोल का बजना शुरू हो जाता है। उंदीर मामा की टपोरी गैंग इज ऑल डांसिंग। आई एम सो हैप्पी, आई रन एंड आई हग बापा। एंड वहाँ पे उंदीर मामा की टपोरी गैंग, आला रे आला आमा सर्वाना आनंद झाला बापा। So that's the thing, the story is welcoming Bappa in a right way. So let's welcome Bappa in a right way. आप लोगों का क्या मानना है? We should welcome Bappa in a right way, right? We want Mata Parvati Gauri to send her child to us, right? In a right way. Okay. Are you enjoying the story? Okay, before I move to next, would somebody like to add? आपको कैसा लग रहा है? Just anybody would like to add? Just trying to interact. कोई बोलना चाहेगा? How did you? Yes, please. I am writing in English, English. Yeah. Yeah, of course there is. Okay. Right. Absolutely. Okay. Thank you. Okay. Yeah. Thank you. Anybody else, please, would like to say something? कोई? No, I think मेरा ये view है कि the way she put across the point कि नहीं सुनता है मेरा आवाज। जिस तरह से इन्होंने ये लास्ट जो स्टोरी था ये काफ़ी यूनिक, मतलब एक थॉट प्रोवोकिंग मोमेंट था जहाँ पर मैं सोच रहा था कि इस तरह से कैसे हम समाज में ये कम्युनिकेट कराएं लोगों को कि अभी विसर्जन होता है वहाँ पर डेसिबल लेवल जो रहता है रोड का, मतलब मैं खुद नीचे जाके मंडल्स के जो वैन्स को मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप इतना ज़ोर से बजा रहे हो, मतलब बापा को ये ज़रूरत नहीं है, मगर आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको कितना इस कारण की वजह से इम्पैक्ट होता है आप समझ नहीं सकते। जो साइकोलॉजिकली इतना इम्पैक्ट करता है हाई डेसिबल लेवल, स्पेशली ये विसर्जन के टाइम पे। और वो लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि आपको जो करना है करो, हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जिस तरह से आपने कम्युनिकेट किया कि ये बापा का श्रद्धा के साथ आप जो कर सकते हो करो, मगर ये सब जो एक्स्ट्रावेगेंजा जो है जहाँ पर हाई डेसिबल लेवल का जो एक म्यूज़िक बजता है, लोग नाचते हैं, मे बी दे आर ड्रंकर्ड और दे आर नॉट, आई डोंट नो, बट
जिस तरह से ये किया जाता है टू प्रूव अ पॉइंट कि भाई चलो वहाँ पर लोग हैं जहाँ पर हमको जज किया जा रहा है कि हम किस तरह से विसर्जन कर रहे हैं, हमको प्राइस मिल सकता है, ये सब जो है कि इन अ वे हम हमारे पॉलिटिशियंस को भी मैं ब्लेम करूँगा, जहाँ पर इस तरह के इवैल्यूएशन क्राइटेरिया उन लोग रखते हैं कि भाई किस तरह से क्राइटेरिया उन लोग कि भाई कौन से मंडल को हम प्राइस दें, और ये सब चीज़ें जो कि पर्यावरण के अगेंस्ट में है ये सब करते हैं और उनको प्राइस भी मिल जाता है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग वे यू हैव कम्युनिकेटेड. और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये वाला जो ये जो पार्ट था ये हम लोग सब लोग वाइडली सबको भेजना चाहिए, मंडल्स को भेजना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई दिस इज़ हाउ श्रद्धा इज. दिस इज़ आपका जो हाइट बढ़ाने से या तो डेसिबल लेवल बढ़ाने से या क्रैकर्स तोड़ने से Bappa is not going to be with us and or honor us or or what you can say respect our sentiments and our devotion. ऐसा नहीं होता. I think it's very well spoken and well communicated actually. और ये हो सके तो हम लोग गणपति के पहले ये स्लिट हम सबको भेजेंगे. It's very very amazing. Thank you so much. Thank you so much everybody. Thank you. I'll try to put Gujarati where because written in English Gujarati I'll try to be neutral. Okay, coming to our next story. Our next story टाइटल नहीं बताऊंगी, स्टोरी का श्री गणेश करते हैं. रात का समय है, बहुत घोर निद्रा हो चुकी है, घोर रात का समय है. एंड बापा इज़ ऑल रेडी टू स्लीप, उनको सोने का टाइम हो गया है, वो रात के जाप कर रहे हैं एंड इज़ ऑल रेडी टू सिट. एंड आई एम सिटिंग इन अ दीवान खाना एंड आई एम लाइक ऐसे ऐसे ऐसे. बापा इज़ लाइक बेटा क्या चल रहा है, बहुत रात हो गई है, जाओ जाके सो जाओ. आई एम लाइक बापा टुमारो इज़ अ वेरी बिग डे. बापा इज़ लाइक व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट टुमारो, क्यों कल क्या है. Bappa is like, Bappa भूल गए आप, I told you ना, I am part of UN committee, cultural committee, so people from all over the world, the committee is coming home, अपने घर आ रहे हैं, कल I have invited them, they're coming at 10 in the morning and followed by lunch. Basically, Bappa, वो मुझे cultural ambassador बनाना चाहते हैं. Bappa is like, that's a very good thing यार, that's very nice, I'm proud of you, बहुत smart, बहुत अच्छे. Like, thank you Bappa. पापा इज़ लाइक तू सो जाओ. पापा इज़ लाइक नहीं नहीं पापा बहुत सारी तैयारी करनी है. पापा इज़ आई नो यू विल डू इट यार, आप कर लोगे, जाओ बहुत रात हो चुकी है, जाओ सुबह जल्दी उठ जाना, अभी आप जाके सो जाओ. आई एम लाइक ओके. और मैं जाके सो जाती हूँ. अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है, कोयल पुकार रही है, बोल रही है, और अर्ली मॉर्निंग हो चुकी है. आई एम वर्किंग. और फिर सुबह 7 साढ़े 7 बजे है और पापा अपनी मसाला चाय की चुस्कियाँ ले रहे बैठे हैं चेयर पे. उतने में मैं लाइक जय गणेश बापा. बापा इज़ लाइक शुभम भवतु, हो गई सारी तैयारी आपकी. हम लाइक यस बापा डन. उतने में ना हमारे छोटे से लड्डू हमारा बेटा है 6 साल का बेटा, वो उसने केडिया पहना हुआ है, केडियू जो गुजराती व्हाट वी वेयर ड्यूरिंग नवरात्रि, उसने वो पहना हुआ है. वो और उंदीर मामा डांस कर रहे मोती वे राणा चौक माँ आव्या अम्बे माँ. हम लाइक क्या चल रहा है. उंदीर मामा भूल गए आज लड्डू के स्कूल में है ना नवरात्रि का सेलिब्रेशन है. आई लाइक ओ यस यस थैंक यू उंदीर मामा, थैंक यू लड्डू को तैयार करने के लिए, थैंक यू. लड्डू इज़ लाइक बाय मामा. आई एम लाइक बाय लड्डू, बाय सी यू. Laddu is like all the best mama for today. I'm like thank you beta. And Laddu goes to school. Husband also, हमारे पति देव भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, बापा अपनी पूजा करने के लिए. एंड आई एम जस्ट कर रही हूँ. उतने में सारे डेलीगेट्स आते हैं, हमारी मीटिंग होती है, बहुत अच्छी मीटिंग होती है, मेरा प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है, एवरीथिंग वेंट गुड. फिर यूएन कमेटी के मेंबर हैं, उनके हेड थे मिस्टर सैमुअल. मुझे मिस्टर सैमुअल पूछते हैं कि मैडम मुझे आपसे एक सवाल पूछना है. अभी आपका नवरात्रि का फेस्टिवल है ना, आप गुजराती, यूर अ गुजराती राइट. हम लाइक या कि वो नवरात्रि फेस्टिवल आ रहा है, कुछ उसके बारे में बताएंगे. हम लाइक या. उतने में तो हमारे लड्डू स्कूल से दौड़ते दौड़ते आ गए, उन्होंने केडिया पहना है एंड सबको हाई फाई है. एवरीबडी इज़ लाइक वार्म वेलकमिंग माई लड्डू. लड्डू इज़ लाइक मैं आपको बताऊँ मिस्टर सैमुअल लाइक हाँ बताइए लड्डू बताइए. लाइक मैं आपको नवरात्रि के बारे में मैं बताऊँ. मिस्टर सैमुअल लाइक यस बेटा बताइए आप, बोलो नवरात्रि क्या है. तो हमारे लड्डू मिस्टर सैमुअल
basically, you know, Navratri is a festival of, is a 9 day, no, not 9 day actually, 9 nights का festival है. Like, okay. So, Mr. Samuel, उसमें होता क्या है? So Laddu is like, nothing much, you know, it's like a war of a DJ. We have a best of the band, and there is a costume competition. Mr. Samuel is costume competition. Yeah, my mama also buys designer dresses, you know. She buys designer dresses. Even I wear designer dresses. And there is this color code theme. Color code theme. Yeah, we all wear similar color clothes. अच्छा, फिर करते क्या हो? Nothing much. We dance. Oh, you all dance? Yes, but ऐसे ही नहीं करते मिस्टर सैमुअल, you know. उसके 2 महीने पहले से हम तैयारी करते हैं, you know. Our entire gang, we come together, we practice. ये स्टेप करेंगे कि ये स्टेप करेंगे, you know. We are well coordinated. हम डांस वैसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, and then we go to best of the happening places in the town. Mr. Samuel like, is it? And I'm like, oh no, लड्डू तुम चुप रहो, तुम क्या बोल रहे हो? And I'm looking for बापा कहीं पे भी नहीं दिख रहे, और उंदीर मामा दूर से ऐसे करके मुझे चिढ़ा रहे हैं. I'm like, please stop, लड्डू मेरे सामने देख ही नहीं रहा है, and he's just बोलते जा रहा है, बोलते. I'm like, क्या बोल रहे हो लड्डू? And लड्डू is like, you know Mr. Samuel, और एक चीज़ आपको बताऊं, उसमें है ना, उसमें भी कैसे होता है, you know, तुम ऐसी वैसी जगह पे नहीं जा सकते. गो अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस, यू नो. इसके गरबा में जाओ, उसके गरबा में जाओ. मम्मी की एक फ्रेंड है ना, उसने तो वो पासेस के प्रीमियम रेट में बेचकर बड़ी सी कार भी खरीदी है ना. मम्मा बोल रही थी नेक्स्ट ईयर हम भी करेंगे, है ना मम्मा. I'm like, क्या हो रहा है यार लड्डू, प्लीज चुप हो जाओ, ऐसा मत बोलो लड्डू. एंड लड्डू एंड बस यही सब चलता है, यू नो. वॉर ऑफ डीजे, म्यूजिक, एंड वी डांस एंड वी ईट, एंड यू नो ऑन द लास्ट डे वी ईट जलेबी फाफड़ा एंड कुछ बॉन फायर जैसा होता है. दैट इज अ स्टोरी बट आई डोंट नो. ओके बाय. एंड ही रन्स अवे. आई एम लाइक, लड्डू मेरी बैंड बजा के गए हो यार. और मिस्टर सैमुअल एंड द एंटायर टीम, वाव, सुपर्ब. हाँ. So somebody saying, is she going to be a cultural ambassador for India? Everybody is, you know, मेरे गोल गोल घूम रहे हैं और ताली, sarcasm में ताली मार रहे हैं. And I'm like, oh God, तुमने क्या कर दिया लड्डू, मैंने कितनी मेहनत की थी. I'm feeling, मुझे ऐसा लग रहा है कोई चुल्लू भर पानी लाके दो यार, मैं डूब मरूं उसमें यार, मैं क्या करूं. I'm feeling so bad. मैंने ऐसे ज़मीन की तरफ मुंह करके, and मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जोर जोर से टिंग 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 कुछ, वो फीलिंग अब समझो, यू आई कांट एक्सप्रेस, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे. एंड कोई मुझे ऐसे झंझोड़ रहा है. एंड आई एम लाइक, क्या हो रहा है? उतने में मेरे पति देव, नेहा अलार्म बंद करो. आई एम लाइक, हाँ, सुबह के 4 बजे. आई एम लाइक, थैंक गॉड, ये सपना था, बहुत बुरा सपना था. एंड मैं जाके आई गो इन दीवान खाना हॉल में बैठती हूँ, तो बापा अपने यू नो सुबह की ब्रह्मकाल की पूजा वो कर रहे थे, और देखा मैं भाग के जाती हूँ और बापा को हक कर लेती हूँ. बापा इज लाइक, क्या हो गया? मैंने बोला बापा, एंड आई कांट से एनीथिंग, मैं जस्ट रो रही हूँ. बापा ने लाइक, बेटा तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार आ गया है, चलो. मैंने बोला बापा मीटिंग, मेरा सपना. बापा इज लाइक, सब हो जाएगा बेटा, तुम आओ, तुम सो जाओ, आओ. बापा अपने कक्ष में मुझे लेके जाते हैं, और बापा अपनी गोदी में. अभी आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू तो जरा आंख बंद कीजिए, क्लोज योर आइज प्लीज, क्लोज योर आइज. और अपने आराध्य, जो भी भगवान को आप मानते हो, इमेजिन कीजिए वो आपके बापा, आपकी माता, शिव, कृष्णा, जो भी आप मानते हो वो है, और वो उनकी गोद में आपको एक बच्चे की तरह, एक माँ जैसे अपने बच्चे को सुलाती है, वैसे थपकियाँ लगा के, कितना अच्छी अनुभूति है ना. सेम वैसे ही बापा मुझे अपनी गोदी में थपकियाँ दे के शिव पंचास्तोत्रम बोल के मुझे सुला रहे हैं. एंड आई एम लाइक, आई एम फीलिंग गुड, एंड आई वेंट ऑफ टू स्लीप. ओके, आई वेंट ऑफ टू स्लीप. एंड बस ऐसे ही समय जाता है. एंड जब मॉर्निंग में मैं उठती हूँ, 12 बज गए, 10 बजे सब आने वाले थे. एंड लाइक, बापा ये आपने क्या किया, सब आने वाले, ये आई एम ऑल लॉस्ट. बापा इज लाइक, शांति बेटा, सब हो चुका है, मीटिंग को रीस्केड्यूल कर दिया गया है, अब सब सुबह में नहीं शाम में आने वाले. दे आर कमिंग इन 5 o'clock in the evening, 6 o'clock in the evening. आई एम लाइक, ओके, डोंट वरी,
उंदीर मामा और उनकी टपोरी गैंग है, वो खाने पीने का संभाल रही है. डेकोरेशन, आई एम लाइक डेकोरेशन मीटिंग के लिए, व्हाट डेकोरेशन पापा? पापा एंड दिस इज अ गिफ्ट. आई एम लाइक व्हाट इज दिस पापा? पापा इज लाइक आई वांट यू टू वेयर दिस फॉर द मीटिंग. एंड मैं खोल के देखती हूँ, इतने प्यारे लाल चनिया चोली. बट आई एम लाइक पापा इट्स अ मीटिंग, चनिया चोली पहन के मीटिंग. पापा इज लाइक क्यों? अपने देसी परिधान पे तुमको, यू डोंट यू फील प्राउड ऑफ योर इंडियननेस? I'm like, yeah, but just imagine if you have to go to a meeting wearing a chaniya choli or a kedu. I'm like, लेकिन अभी बापा को मना कैसे कर सकते हैं? अभी बापा ने बोला तो करना तो पड़ेगा. I'm like, okay. मैंने चनिया चोली पहना है. एंड शाम का समय हुआ, बापा भी कुर्ता और पैजामा में है. उंदीर मामा और उनकी टपोरी गैंग सारी सबने केडियो पहना हुआ है, वाइट केडियो, इतने प्यारे. कहना तो नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू से इट, बट उंदीर मामा एंड हिज गैंग इज लुकिंग वेरी वेरी क्यूट. बहुत प्यारे लग रहे हैं. हमारे लड्डू हैं, उन्होंने भी केडियो पहना हुआ है. हमारे पति देव, उन्होंने भी कुर्ता पैजामा पहना हुआ है. एंड मैं क्या देख रही हूँ, यूएन की पूरी कमेटी आई हुई है. जितने लेडीज थी सबने चनिया चोली पहना हुआ है, और जितने भी जेंट्स थे सबने धोती कुर्ता. एंड दे लाइक थैंक यू मिसेस नेहा, थैंक यू. आई एम लाइक उंदीर मामा मेरी चोटी खींचते हैं और मुझे बोलते हैं यू ओ मी बिग टाइम. आई एम लाइक उंदीर मामा ये सब आपने भेजा? उंदीर मामा इज लाइक येस. लाइक थैंक यू उंदीर मामा. सो हमारी एज यूजुअल हमारी मीटिंग होती है, एवरीथिंग गोज वेल. एंड मिसेस सैमुअल इज लाइक, Neha ma'am, I want to ask you one question about this is Navratri, right? I'm like, yes, Navratri. So I want to ask you about Navratri. Can you tell me something about Navratri? So Laddu mama, I'm like, nahi Laddu, nahi. Laddu. So Mr. Samuel is like, yes ma'am, let the child speak. I'm like, no ma'am. Why? You want to be a cultural head. अगर आपके बेटे को नहीं पता तो और किसी को कैसे पता होगा? Yes Laddu, you tell me, what is it about? So Laddu is like, Navratri is a festival. So one of the delegates says कि यार मुझे एक बात आप इंडियन की समझ में नहीं आती, आप कहीं पे भी लाउंज में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आप गोल करके ही क्यों नाचते हो? And why do you form a round, and why can't you just dance like that, and why do you clap and dance? So Laddu is like, excuse me sir, it is not a dance, it is our worship to Mata Amba Gauri, to Durga. It is our worship. तो वो डांस नहीं है, it is a form of a worship. तो डेलीगेट लाइक इज इट, लेकिन एक बात बताओ, तो ये आप किसके लिए करते हो? लड्डू इज लाइक माता अम्बा गौरी के लिए, माता अम्बा गौरी के लिए. बट क्यों करते हो? तो वन ऑफ द डेलीगेट, दे डू इट टू कॉल माता अम्बा गौरी, तो दूसरा डेलीगेट बोलता है कहाँ से आती है माता गौरी? तो अदर इन साइड है फ्रॉम दी हेवन, राइट? लड्डू इज लाइक, यू हैव ऑल द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. आपको कौन बोल रहा है कि माता स्वर्ग से आती है? नहीं. तो वो डेलीगेट पूछते हैं, अगर स्वर्ग से नहीं आती तो कहाँ से आती है? तो हमारे लड्डू, हमारे घर से. हैं? तुम्हारे घर से? हमारे मंदिर से. तुम्हारे मंदिर? अरे ये कोई आपका अब्रॉड नहीं है, ये हमारा इंडिया है. यहाँ पे मम्मी पापा बेटा बेटी साथ में, आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड सिनेरियो, साथ में रहते हैं. तो जब पापा उनका बेटा यहाँ पे है तो उनकी मम्मा भी तो यहीं पे होगी ना, तो वहीं से मंदिर से आती है. सो वन ऑफ द डेलीगेट इज लाइक, एक बात बताओ, तो सर नवरात्रि में ही क्यों आती है? तुम लोग नवरात्रि में ही क्यों बुलाते हो, ऐसे क्यों नहीं आती? तो लड्डू इज लाइक, कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चन मिस्टर सैमुअल? मिस्टर सैमुअल इज लाइक, हाँ हाँ पूछो. आप लोग मीटिंग, यू स्टे इन यूएस, यू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, यू स्टे इन जर्मनी, तो आप लोग मिलते कैसे हो? सो एवरीबडी इज लाइक, वी हैव वेल कनेक्टेड प्लेटफॉर्म. हम गूगल मीट से मिलते हैं, हमारी जूम मीट होती है, वी आर कनेक्टेड, व्हाट्सएप, ये सब हमारा ईमेल से हम कनेक्टेड रहते हैं. तो लड्डू इज लाइक, जब आप लोग ह्यूमन हो के इतने कनेक्टेड रह सकते हो, वो तो माताओं की भी माता है, तो तुमको लगता है कि उन वो कनेक्शन में नहीं रहेगी? शी इज़ वेरी गुड इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप. तो वो तो आ जाती है. एंड नवरात्रि में इसीलिए, बिकॉज दोज आर द स्पेशल डेज, ऑन द स्पेशल डे यू वांट टू मीट योर ओन पीपल, राइट? बर्थडे में आपको मिलना है ना, so that is what Mr. Samuel, yeah. And Laddu is like, I also want to tell you one thing. आपने पूछा ना आप clap क्यों बजाते हो? So I want to say, you remember if you go to anything, बड़ी से, like for example, imagine अमिताभ बच्चन coming in, तो सब लोग खड़े होके clap नहीं करेंगे. वैसे ही जब माता अम्बा गौरी is a big celebrity, when she comes, everybody has to clap. That is the reason we clap. And also,
why do you clap on happy birthday? Why can't you just wish happy birthday? Because you are celebrating, right? So even we are celebrating. इसलिए हम clap करते हैं. And I am like, my tears are rolling. I'm like, Laddu, good job. I'm looking around and Bappa is standing there and he's smiling. I'm like, thank you, Bappa. Thank you. और सारी US delegate की team, they are clapping and they are saying, good job, Mrs. Neha. Good job. We are proud of you. करके आपसे अच्छा तो एम्बेसडर कोई हो ही नहीं सकता. And it was such a big thing. And Laddu is like, wait a minute sir, this is not done. So Mr. Samuel पूछते हैं लड्डू को, क्या हम अम्बा गौरी से मिल सकते हैं? तो लड्डू इज लाइक, हाँ आपको मिलवाता हूँ, लेकिन यू विल बी हैव टू बी लाइक अ चाइल्ड लाइक, आपको सच्चे भाव से बुलाना पड़ेगा, माता अम्बा गौरी आएगी. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम सेइंग, आई हैव ऑलरेडी इनवाइटेड हर, वो आने वाली है. तो मिस्टर सैमुअल कैसे आएगी? चलो सारे हम खड़े रहते हैं और पंडाल में जैसे पहले के टाइम पे डेकोरेशन होता है, आसो पालवनु डेकोरेशन, जैसे अशोका लीफ का एंड गेंदे के फूल का पूरा डेकोरेशन किया गया है, देसी ढोल नगाड़ा है और पूरा सिंहासन सजाया गया है. वहाँ पे एक गरबा रखा हुआ है, गरबी जे अ पॉट विच वी वर्शिप, गरबा वो रखा हुआ है, माता का फोटो रखा हुआ है, एक सिंहासन रखा हुआ है, और हम जय आद्या शक्ति की आरती करते हैं. उतने में शंखनाद होता है, एक दिव्य ज्योत होती है, कोयल चहकने लगती है और माँ शेरा वाली शेर पे विराजमान होके आ रही है. लेट्स वेलकम माता अम्बा गौरी विथ अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज. माता अम्बा गौरी शेर पे बैठ के आई है. सब उंदिर मामा उनकी गैंग सब भाग के माता का आशीर्वाद ले रहे. माता ने कहा आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती. हम सब भाग के आशीर्वाद ले रहे हैं माता का. लड्डू को माता कहती है, लो तुम्हारे कहने में मैं आ गई. मिस्टर सैमुअल सब मिलते हैं माता जी से और हम सब बैठ के हमने खीर, पूरी, दाल, चावल, हमने वो पत्रावली में खाना खाया. एंड इट वॉज सच अ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस. इतना अच्छा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहा. फिर ये सब खत्म हो गया. रात का टाइम में जाके मैंने गणपति बापा और उंदिर मामा को बोला, थैंक यू गणपति बापा, थैंक यू उंदिर मामा, आपने मेरी लाज रख ली. गणपति बापा इज़ लाइक, लेकिन तुमने इससे कुछ सीखा? मैंने बोला बापा आई नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. मुझे बापा इज़ लाइक, यानी तुमने अभी तक नहीं सीखा. लाइक बापा, लेकिन आई एम लाइक बापा आपने लड्डू को ये सारी चीज़ें सिखाई कब? पापा ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैंने लड्डू को ये सब सिखाया? अरे ये भारतवर्ष के बच्चे हैं, मैंने सिर्फ उनको कथा सुनाई. ही स्मार्ट इनफ टू कैलकुलेट एंड इवॉल्यूएट व्हाट ही इज सपोज टू डू. तुम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि तुम लोगों के पास टाइम नहीं है. यू जस्ट गिव देम मोबाइल, वो दे देते हो बच्चों को. अरे बच्चे को सिखाओ तो सही, तो उसको समझ में आएगा. आपनी धरोधर आगळ વધશે કેવી રીતના? आप जब बताएंगे नहीं अपने बच्चों को, बिकॉज योर चाइल्ड ही डजंट लिसन्स टू यू, ही इज लुकिंग टू योर एक्शंस. वो आपको देखते हैं यार. अगर आपको, एंड नवरात्रि इज नॉट अ वॉर ऑफ अ डीजे, इट्स नॉट अ कॉस्ट्यूम कॉम्पिटिशन, इट इज़ आराध्य की बात है, श्रद्धा की बात है. एज अगैन अगर माता रानी का करना है तो सच्चे भाव से हम करते हैं. सो दैट वॉज माई स्टोरी ऑन नवरात्रि. थैंक यू. एंड द वेरी लास्ट शॉर्ट स्टोरी, एंड विद दैट फिर मैं पूर्णविराम करूँगी. लास्ट स्टोरी ऑफ द डे. ओके, आई होप आई एम नॉट बोर नहीं हो रहा है आपका. आई होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम. ओके, द लास्ट स्टोरी. सो इट्स अ ब्यूटिफुल आफ्टरनून. पापा बैठे हुए, लेकिन अभी आफ्टरनून है इसलिए चाय नहीं पी रहे, बैठे हुए हैं पापा बैठे हुए हैं. और उतने में मेरा लड्डू भाग के आता है और मेरे को कहता है, मम्मा आई हैव टू राइट एन ऐसे, हमको स्कूल में एजुकेशन कंपटीशन है और मेरा टॉपिक है हिपोक्रेसी. हम लाइक ओके बेटा, आई एम द बेस्ट स्टोरी टेलर, आई विल टीच यू. उतने में उंदिर मामा आते हैं, बेटा इधर आ जाओ, मैं तुम्हें सुनाता हूँ स्टोरी. लाइक उंदिर मामा, हेलो, एक्सपर्ट से लिखने दो, मेरे बच्चों का कंपटीशन है, उसको जीतना है, मैं उसको सिखाती हूँ. उंदिर मामा इज लाइक, तुमसे अच्छा स्टोरी टेलर मैं हूँ. लाइक लग गई चैलेंज. उंदिर मामा ने कहा लग गई, तो हमारी चैलेंज लगी. अगर मैं हार गई तो मेरा आईफोन उंदिर मामा ले लेंगे, और अगर उंदिर मामा जीत गए तो वो हर जो बोलेंगे मुझे करना है. आई एम लाइक ओके, वी अग्रीड, ओके ठीक है. एंड मैंने उंदिर मामा को बोला, तुम्हारा OnePlus का भी फ़ोन मैं ले लूँगी, हाँ आपका फ़ोन मैं ले लूँगी. उंदिर मामा इज़ लाइक ओके, हमारी अग्री. उंदिर मामा लड्डू को खींच के लेके गए और उसको स्टोरी
उसको प्रिपेयर करवा रहे हैं। मैं बैठी हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट यार, मेरे जैसा अच्छा तो कोई है ही नहीं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे जैसी तो स्टोरी वो सिखा ही नहीं पाएंगे। उतने में मैं गणपति बापा बैठे हैं। गणपति बापा ने कहा, लड्डू हो गई तुम्हारी तैयारी, स्टोरी हो गई तुम्हारी, तुम पे हिपोक्रेसी पे कुछ लिखना था ना, एजुकेशन का हो गया? लड्डू इज लाइक हो गया, बोलो उंदीर मामा ने आपको क्या सिखाया? तो लड्डू इज लाइक, एक है ना लक्कड़हारा होता है, देयर वाज अ वुड कटर, एक बार वो जाता है अपनी कुल्हाड़ी लेके, फिर वो एक बार है ना ट्री कट कर रहा होता है, उतने में उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है। आई एम लाइक मैं जीत गई। उंदीर मामा लाइक, क्या? अरे ये स्टोरी है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के लिए, स्कूल में भी पढ़ाते हैं, छोटे बच्चे को भी पूछो तो भी उसको पता है। ये स्टोरी कोई हिपोक्रेसी की स्टोरी नहीं है, दिस स्टोरी इज फॉर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो उंदीर मामा इज लाइक, प्लीज। लड्डू इज लाइक, नो मम्मा। आई एम लाइक, लड्डू यू आर स्मॉल, तुमको नहीं पता बेटा, मैं जीत गई। ऐसे ही मैं उंदीर मामा का फोन मैंने ले लिया, आई एम लाइक जीत गए, आई एम ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग गणपति बापा इज लुकिंग एट मी लाइक दिस। मैंने कभी बापा को ऐसे देखा नहीं है। उनकी नज़र से मैं समझ गई कि बापा को ये बात अच्छी नहीं लगी। आई लाइक, बापा क्या हुआ? बापा इज लाइक, बेटा मैं तो समझता था कि तुम तो समझदार हो। क्यों बापा, मैं समझदार नहीं हूँ? बापा इज लाइक, आज मुझे लगता है तुम नहीं हो। अरे पापा बस आप भी उंदीर मामा की साइड ले रहे हो। अरे he had to write a story on honesty is the best, not honesty is the best policy, on hypocrisy। देखो उसने क्या स्टोरी सुनाई। गणपति बापा बोलते हैं, तुझे क्या लगता है उंदीर मामा ने उसको क्या स्टोरी सुनाई है? मैंने बोला वही लक्कड़हारा की। गणपति बापा इज लाइक, बस, विथ अ वेरी लाउड वॉइस, बस। लाइक, अब तुम सुनोगी उंदीर मामा ने लड्डू को क्या स्टोरी समझाई है? आई एम लाइक, हाँ पापा। गणपति बापा इज स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन। एक लक्कड़हारा था, आई एम लाइक, ओ गॉड। वो गया, उसने वो पेड़ काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, वो रोने लगा। उतने में जल देवी जो है, वन देवी, वो आए, बोला बेटा आप क्यों रो रहे हो? एंड आई एम लाइक, यार ये स्टोरी आप सबको पता है ना, वो स्टोरी लक्कड़हारे की। वो गिर गई, फिर रोने लगा, क्या हुआ? मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है। तो वो माता आती है, उनको देती है, ये लो सोने की। तो वो लकड़हारा बोलता है, ये मेरी सोने की नहीं है। फिर चांदी की, ये भी मेरी नहीं है। फिर हीरे की, ये भी मेरी। माता बहुत खुश होती है, उसको तीनों कुल्हाड़ी दे देती है और उसकी भी कुल्हाड़ी दे देती है एंड ऑल। आई सेड, बापा एम आई वेरी स्मार्ट और एवरीबडी इज जस्ट ट्राइंग टू एक्ट डम? अरे बापा ये हिपोक्रेसी की स्टोरी नहीं है, ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बापा इज लाइक, वेट, ये स्टोरी यहाँ तक तो ठीक है, यही स्टोरी आप अपने बच्चों को, हमने ये स्टोरी सुनी है, हम भी अपने बच्चों को यही स्टोरी सुनाते। बापा इज लाइक, ये स्टोरी आगे बोलने से पहले मुझे ये बता, कल रात को तुम क्या कर रही थी? मैं क्या कर रही थी? बापा, आई वॉज वर्किंग ऑन माई लैपटॉप, आई वॉज मेकिंग सर्टन क्रिएटिव्स। मैं कैनवा पे क्रिएटिव्स बना रही थी, पोस्टर्स बना रही थी। बापा इज लाइक, आई वेरी वेल नो। चलो अभी स्टोरी पे आते हैं। लाइक, ओके, क्या बापा? बापा ने कहा, उंदीर मामा ने लड्डू को ये स्टोरी यहाँ तक का वापस, गणपति बापा, आई लाइक, बापा अगेन द सेम स्टोरी। बापा इज लाइक, सुन तो लो पहले। लक्कड़हारे की कुल्हाड़ी गिर गई, वो माता आई, ये तुम्हारी, वो बोला नहीं। फिर देवी माँ आई और उन्होंने एक टोकरा दिया फलों का, ये लो। मैंने बोला वेट अ मिनट बापा, स्टोरी में फ्रूट्स नहीं देते हैं, कुल्हाड़ी देते हैं। बापा इज लाइक, हियर कम्स द टर्निंग पॉइंट। तो वो लकड़हारा कहता है, ये फलों का तो मैं क्या करूँगा, मेरे तो बच्चे हैं, माँ बाप है, ये फल तो आज के लिए ठीक है, फिर कल के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। और वो रोने लगता है। तो माता कहती है, तुझे रोना आ रहा है? तेरे बच्चे, वो लकड़हारा बोलता है, बारिश भी होगी, मेरा घर बह जाएगा पानी में, मेरे पास पक्का घर भी नहीं है। तो माता कहती है, अब ज़रा सोच, तूने इतने सारे पेड़ काटे, वो पेड़ के ऊपर कितने सारी चिड़ियाओं के घोंसले थे, कभी तूने सोचा कितने के बच्चे मर गए, कितने जीव जंतु उस पर निर्धारित थे, वो मर गए, कभी तूने सोचा? नहीं, यू जस्ट थॉट ऑफ योर फैमिली, योर टमी। एंड लकड़हारा इज लाइक, माता मैंने ऐसे तो सोचा ही नहीं। माता ने कहा, कोई बात नहीं, ले बेटा, ये मेरे आशीर्वाद दिए हुए फ्रूट है, इसे खाना और उसकी गुठली लगाना, कल ही इसमें से पेड़ आएंगे, बहुत सारे फल देंगे, बट दीज आर ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ओके? रसायन का मिक्सचर मत करना, तेरे बाग खलियान होंगे और वो बेचना, सबको हेल्दी खाना खिलाना। एंड लकड़हारा चला जाता है। आई एम सिटिंग, बाबा इज लाइक, तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है? हिपोक्रेसी। द हिपोक्रेसी, द मेन एंगल इज यू पीपल,
आप क्या करते हो, बच्चों को ऐसी स्टोरी सुनाते हो, और फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, दैट इज 5th जून, आप एक्सपेक्ट करते हो अपने बच्चों को कि ग्रो मोर ट्रीज, ग्रो मोर ट्रीज। अरे बच्चों को ऑप्शंस तो सिखाओ कि इट इज यू नो एनवायरमेंटल मदर, यानी नेचर, द मदर नेचर, वो तुम उसको नुकसान करोगे और आके तुम पे प्रसन्न होगी। कैन आई हर्ट यू? अगर मैं तुमको एक चाटा मारूं, तुम बोलोगी बोलो बेटा मैं खुश हो गई, ऐसा करोगी क्या तुम? लाइक नहीं, तो वो स्टोरी ही गलत है। यू नो, अगर बच्चों को सिखाना है तो ऐसा उनको एग्जाम्पल सेट करो कि ऐसे फ्रूट्स दिए, ईट ऑर्गेनिक, उनको एग्जाम्पल्स दो, यू नो, मेक देम थिंक, क्रिएटिव थिंकिंग के, यू नो ऐसा भी काम हो सकता है। कितने आप पूछो बच्चे को क्या बनना है, somebody say I want to be aeronautic engineer, which is good, ये बनना है, ये बनना है। अरे कोई तो बोलो मुझे फार्मर बनना है, जस्ट एन ऑप्शन, बने नहीं बने बात की बात है, एक ऑप्शन तो दो, लेट देम थिंक। सो दिस इज अ हिपोक्रेसी। एंड पापा कहते हैं यार बेटा, सिर्फ यू नो ट्विटर पे या फेसबुक पे या इंस्टा पे ग्रो मोर ट्रीज करके ऑक्सीजन का प्रमाण नहीं बढ़ता, एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है। तो उसे कहते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से नहीं बढ़ता। And I'm like, yes. So now you got it. Who is the hypocrite here? I'm like, yes, I got it. Hope you understand who is the hypocrite here, right? And Bappa very quickly, Bappa is like, it is very important to narrate right kind of stories. Bappa क्या कहते हैं कि यार तुम लोग अभी बच्चे को हो, अभी वो स्टोरी तो हम सब ने सुनी है, you know, when a fox and the grapes. Fox is very hungry. He's jumping and he thinks grapes are sour, और वो चला जाता है। बापा इज लाइक, अरे बच्चों को ऐसा क्यों सिखा रहे हो, टीचिंग हिम टू बी अ लूजर। बच्चे को कहानी सुनाओ कि देखो एक लड्डू था, उसने देखा एक फॉक्स जंप कर रहा था लेकिन वो पहुंच नहीं पड़ा था, लेकिन लड्डू, तुम तो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो ना, लड्डू को सिखाओ। वहाँ पे है ना, फिर क्या था, लड्डू था, लड्डू ने कहा रुको फॉक्स, आई विल हेल्प यू, लेकिन आधी ग्रेप्स मुझे देनी पड़ेगी, हाँ। एंड वो लड्डू सीढ़ी होती है, वो सीढ़ी लेके रखता है और ग्रेप्स तोड़ने की ट्राई करता है। लाइक भापा कुछ भी, सीढ़ी कहाँ से आ गई? भापा इज लाइक, जब तुम्हारे फिल्म में गाने में सब ऐसे ही लिरिक्स बना देते हैं, नाचते हैं, तो ये भी तो हो ही सकता है ना, सोचो। आई एम लाइक ओके, लेकिन सीढ़ी से वो बच्चा पहुंच नहीं पाया ऊपर। फिर वहाँ पे एक फेरिस व्हील, वो मैरी गो राउंड, वो जो राउंड राउंड होता है झूला, यू नो राउंड, वो था। लड्डू उसके पास गया कि आई हैव अ डील फॉर यू, यू नो हम ग्रेप्स तोड़ेंगे, आप भी आधी रखना, आधी फॉक्स रखे, आधी में। टीच योर सन, नरेट देम द राइट स्टोरीज दैट विल हेल्प देम, बिकॉज बच्चे उसी से तो अपना मॉरल, उसी से तो अपना हीरो, उसी से तो अपनी वैल्यू सेट करते हैं। सो विद दिस यू नो आई वुड लाइक टू वाइंड अप एंड आई वुड से यू नो माई भक्ति फॉर गणपति बापा इज जस्ट a drop in an ocean, but his blessings are like entire ocean in a drop. Thank you so much for being a wonderful audience. Thank you so much. Thank you. अमेजिंग। आई थिंक जिस तरह से आपने हर सोशल इशू को इतनी इंटरेस्टिंग वे में समझाया, इट वाज रियली अमेजिंग। एंड आई थिंक योर घर का जो लड्डू है विल बी वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ मदर लाइक यू। जिस तरह से आपने हमको इतना क्रिएटिव वे में समझा, आई एम श्योर लड्डू इज़ वेरी ब्लेस्ड। उसको क्या किस क्रिएटिव वे में अपना एक इश्यूज़ को आप उसको समझाती रहोगी, एंड ही डेफिनेटली विल बी अ वेरी गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम श्योर अबाउट इट। सो आई एम रियली थैंकफुल आपने हमको टाइम दिया और हमारे PSS BES में आके अपना ये आपका जो थॉट्स है, आपका स्टोरी टेलिंग, जिस तरह से आपने सोशल इश्यूज़ को अपने हाईलाइट किया, इट्स वी आर रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच। एंड हमारा जो टी कॉर्नर है, अभी नेक्स्ट टी कॉर्नर आई थिंक 30 जून को है। हिमांशु, 30 जून, राइट? कैन यू कम एंड अनाउंस द टॉपिक एंड द स्पीकर? प्लीज कम फास्ट। Yeah, please. We will just finish this. And Manisha, if you have the date and time for the next one as well, you can announce. Yeah. It's about consumer laws and medical negligence. It will be conducted by Advocate Asim Vidyarthi. So it's on the 30th of June, right?
30th June, last Sunday of the next month, and it's going to be in the same premises. 10 o'clock in the morning we will be here. So आप अपना अपने groups में please announce कीजिए और invite कीजिए. Manisha, you have the speaker for the July month? It's on 20th of July, the last Sunday of the month, and we will be keeping a holistic way to control our lifestyle disorders. The session will be on that. Thank you so much. Thank you so much. Acha, we will. Any questions to the speaker for today? किसी का कुछ questions हैं? Anybody wants to, reflect upon today's topic? Yeah. एक तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी तरह से छोटे बच्चे की तरह से हमें एक्सप्लेन किया और बहुत बढ़िया. अच्छा, यहाँ थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ऑल ऑर्गेनाइजर जिन्होंने इतनी अच्छी से मेहनत करके ऐसे अच्छे टॉपिक को हाईलाइट्स किया. और बहुत अच्छा भी लगा कि ये छोटी छोटी चीज़ है पर इसकी इम्पैक्ट बहुत होती है. तो आई हैव 1-2 सजेशंस फॉर आप तो बहुत जगह पे अच्छे स्प्रेड करते हो, पर आपकी जो स्टोरी है वो उसमें और हम सब की जो मान्यता इतने टाइमों की है उसमें हमें हमारे माता पिता जी या सीनियर्स या अदर्स हमको हाउ बताते हैं कि कैसे भगवान की आराधना करनी चाहिए या किस तरह से गणपति मनाना चाहिए, नवरात्रि मनाना चाहिए या एनी अदर थिंग्स, पर वाई मनाना चाहिए वो बहुत कम लोग बताते हैं या हमको पता होता है. जैसे एग्जांपल इन्होंने आपने बहुत बताया, स्टोरी में बताया था कि हम जब फेस्टिवल होता है तब हम आसोपालव के पान लगाते हैं. इट्स गुड, पर क्यों आसोपालव के ही पान लगाते हैं, क्यों अदर पान लगाते नहीं है? तो कुछ आइडिया? तो वो मेरे हिसाब से इस पे ऐसा है कि पहले के टाइम पे एसी नहीं थे, एग्जॉस्ट फैन नहीं थे और छोटा घर था, और आसोपालव के पान ऐसे होते हैं कि जो तोड़ने के बाद भी 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं, तो एग्जॉस्ट फैन की काम करता है. तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ है घर में बच्चे को पता ही नहीं होती. जस्ट पिताजी ने लाया था इसलिए बेटा भी लाया, और बेटा लाया इसलिए ग्रैंडसन भी लाता है. वैसी बहुत सी चीज़ होती है कि कृष्ण भगवान अपने सिर पे मोरपींछ रखते हैं, जैन महाराज भी उसकी पीछ ही रखते हैं और मोरपींछ की. तो क्यों मोरपींछ की ही, क्यों अदर पंछी नहीं? तो उसके पीछे भी शायद लॉजिक है जो बाकी सब लोगों को भी पता होगा, पर मैं ये लाइट डालना चाहता हूँ कि वो शायद आप आपकी स्टोरी में डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. कि पहला चीज़ है कि मुझे मोरपींछ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मोर को मारूंगा, पर मोर को मारना नहीं पड़ता, वो एवरी 3-6 मंथ अपने पीछ निकाल देते हैं, तो एक जीव हत्या नहीं होती. दूसरा, वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि किसी को भी लेना पसंद होता है. तीसरा, अगर यहाँ एक चींटी है और वो जाती है और मैं कागज़ से या कपड़े से निकालूँ तो वो चींटी का हाथ पैर टूटता, पर मैं मोरपींछ से करूँगा तो उसको चींटी को नुकसान नहीं होगा. एंड चौथा, द बेस्ट इज़ कि मोरपींछ, वो मोर एक ऐसा प्राणी है कि वो संभोग से बच्चा नहीं आता है, जस्ट ढेल के आँख से टीपे से होता. ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं. मैं आप जैसे को सजेस्ट करूँगा कि 1 मिनट की आपकी स्टोरी या 1 मिनट की आप इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग करते, उसमें हाउ तो आप बताते हो पर एक वाई डालेंगे और रोज़ 1-1 मिनट की एक स्टोरी बनाएंगे जो इंस्टा पे या इस पे या स्टेटस पे डालेंगे, तो शायद यंग जनरेशनों को या अपने कल्चर को अच्छा रहेगा. थैंक यू वेरी मच. Very good. Thank you so much. Thank you so much. Very good thought and suggestion. और किसी को कुछ any questions? Anybody? Okay. So अब हम we want like to felicitate Neha ji. I would request our you would like to also talk? Please. मैं मुकेश पंड्या, मुंबई समाचार से. जैसे भाई ने बताया है कि हाउ, वैसे मैंने वाई पे पूरा बुक लिखा है अपना रिलीजन फेस्टिवल्स में वाई टू डू. तो आज मैं वो कीपिंग इन माइंड आया था कि इसको हम बात करेंगे कि वो जो मुद्दे हैं, वो पॉइंट्स है, उसको अभी कैसे स्टोरी में करके नेक्स्ट जनरेशन को समझा सकते हैं. तो आपने जब ये पॉइंट उठाया कि वाई, तो हम कभी बैठेंगे और वाई भी, हाउ भी करेंगे और वाई भी करेंगे. थैंक यू.
सो बढ़िया कोलैबोरेशन हो रहा है यहाँ पर थॉट्स के और आइडियाज़ के, बहुत बढ़िया. और प्रीतेश भाई गांधी, थैंक यू सो मच. आप भी फिनेंस एंड फील्ड पे काफ़ी माहिर हो, एंड वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव योर थॉट्स. थैंक यू सो मच. और yeah, we recognize the presence of our the environmentalists, the River March group, the founders, Bajrang and Gopal. We really recognize your presence. Thank you to be here. So I think ये जो नेहा जी का जो स्टोरी है गणपति का, आई थिंक यू वुड हैव रिलेटेड टू इट वेरी वेल. ये हम जिस तरह से कम्युनिकेट करना चाहते हैं लोगों को, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. दे आर द फाउंडर्स फॉर रिवर मार्च, मुंबई मार्च विद सिटीजन्स मूवमेंट for creating a difference in Mumbai and world. So we would like to felicitate Neha ji. I would like to request our treasurer Kaushik and Ajay bhai, our past president, why don't you also come and kindly felicitate. We have our tea corner memento which is uniquely designed. So thank you Neha ji. So thank you so much. I think if all of us can assemble यहाँ पर आके एक ग्रुप फोटोग्राफ ले लेते हैं तो I'll be really obliged. And I would like to thank RTV for the videography and projection facilities. RTV के लिए बहुत बहुत thank you. Murali Sanskritik Kendra for giving us the venue. Thank you so much. And thank you all of you to have spared time and come and listen to this great speaker for today. Thank you so much.